اب دن سے رات ہو گئی تھی لیکن وہ آج کھانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ نور جانتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آلیان بھی مان کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا، جبکہ ماہی بھی اپنے روم میں تھی۔ نور نے حلق سے نوالا اتارنے کی کوشش کی لیکن چاہنے کے باوجود بھی حلق سے نوالا اتارا نہ گیا۔ اس شخص کا دل دکھا کر وہ اس قدر بے چین ہو جایا کرتی کہ پھر زندگی کا کوئی رنگ اچھا ہی نہ لگتا تھا۔ اور آج بھی صبح سے زرمان نے اس کا فون اٹھایا نہیں تھا۔ وہ بار بار فلیٹ کا دروازہ کھولتے زرمان کے دروازے پر نظر مارتی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ باہر تالا دیکھ کر وہ پھر دروازہ بند کر دیتی اور اب بھی وہ اپنے فلیٹ کی گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی اداسی سے۔ جب اس کے ذہن میں پھر یہ آیا کہ ایک بار دیکھ آئے اس کے فلیٹ میں، وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اس بار زرمان کے دروازے پر تالا نہیں تھا۔ تو کیا وہ آج یہاں نہیں آیا تھا؟ کھانا بھی نہیں کھایا تھا؟ نور نے خود کو بلیک شال سے ڈھکتے آہستہ سے اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کیا تھا اور اس کا دروازہ خود جا کر کھٹکھٹایا۔ زرمان جو آتے ہی چینج کرتا صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دماغ یہاں نہیں تھا۔ پیچھے صوفے پر سر گرائے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب اس کے فلیٹ کی بیل بجی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالتے وہ اٹھا تھا۔ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، کچھ حلق سے نہ اترا تھا۔ دماغ میں صرف صبح کی باتیں اور نور کے آنسو تھے۔ اس کے لہجے میں زرمان نے آج بھی المیر کے لیے فکر محسوس کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو بلو رنگ کے سوٹ میں، بلیک شال کندھوں پر ڈالے، صاف شفاف چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زرمان ایک پل کو حیران ہوا اسے اپنے سامنے دیکھ کر، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پورا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ جھجکتے ہوئے خاموشی سے اندر قدم رکھ گئی۔ پیچھے زرمان نے دروازے کو کھلا رکھا تھا، بند نہیں کیا تھا۔ وہ بھی پلٹ کر اندر آ گیا۔ نور نے اندر آتے دیکھا تو صوفے کے سامنے ایک چائے کا کپ رکھا تھا، شاید آج اس نے چائے خود بنائی تھی۔ نور نے ایک نظر کپ کو اور دوسری نظر زرمان پر ڈالی جو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا کھڑا تھا۔ نور صوفے پر بیٹھی تو وہ بھی اس کی تاکید میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ نور نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا تو زرمان نے اسے دیکھے بنا بس نفی میں سر ہلایا۔ شام میں کھایا تھا؟ نور نے اسے دیکھتے پھر سوال کیا تو وہ ایک نظر نور کو دیکھتا واپس نظریں جھکا گیا اور نفی میں سر ہلا گیا۔ چائے آپ نے بنائی ہے؟ نور نے ایک اور سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا تو نور اسے خاموشی سے دیکھے گئی۔ مان! وہ اتنے نرمی اور پیار سے اس کا نام پکارتی تھی کہ زرمان کا دل ہی رک جاتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ زرمان خان کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا کہ نور 2 لمحے دیکھتے فوراً نظریں جھکا گئی۔ نور کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ سرخ و سفید ہاتھ پر اتنا بڑا زخم تھا جو کھلا تھا، خون کی لکیر زخم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پھولا ہوا تھا کہ نور کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا مان؟ یہ آپ کے ہاتھ میں یہ چوٹ کیسے آئی؟ نور اپنے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس گئی جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام گئی، جبکہ اس کی اس فکر پر زرمان خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیے اس کے زخم کو جانچنے لگی تو زرمان بت بنا بیٹھا رہا۔ ہم فرسٹ ایڈ باکس لاتے ہیں، صبر۔ وہ بھاگی ہوئی اندر گئی اور تھوڑی دیر میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھی۔ یہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ آپ بھی ہمیں تنگ کریں گے اب؟ ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی مان۔ وہ آنسو بہاتی اسے ہاتھ پر دوائی لگاتے بولی تو زرمان ہوش میں آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ زرمان نے خاموشی سے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن وہ نظر اٹھا کر اسے گھورنے لگی تو وہ پھر ٹھہر گیا۔ اس کے ہاتھ کی پٹی کرتے نور کھڑی ہوئی اور روتی ہوئی گھر سے جانے لگی تو زرمان نے اٹھتے اس کی کلائی تھامی۔ جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، زرمان نے صفائی دی تو نور نے پلٹ کر اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دھمکی دی تھی آپ نے ہمیں، اگر ہم آپ کو روکیں گے تو آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے، اور وہی کیا آپ نے، نور نے نم آواز میں کہا تو زرمان کا دل ہاتھوں میں آیا اسے روتے دیکھ۔ یار رونا تو بند کرو سن شائن، وہ چڑ کر بولا تو نور نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، زرمان نے معصومیت سے کہا تو نور گھورتے ہوئے پلٹی۔ اپنے گھر جاتے تھوڑی ہی دیر میں کھانا گرم کر کے لے آئے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا تھا تو نور اس کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ اس کے ہاتھ پر گہرا زخم دیکھ نور نے چاول چمچ میں بھرتے اس کے منہ کے آگے کیے تو زرمان سانس روکے کبھی اسے تو کبھی سامنے چمچ کو دیکھنے لگا۔ سن شائن تم پریشان نہ ہو، میں کھانا کھا لوں گا، زرمان نے مسکراتے کہا اور نور کے ہاتھ سے چمچہ لیا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اسے تھما گئے۔ ہم آپ سے ناراض تھے، نور نے۔ آپ ہم سے ناراض تھے؟ نور نے پوچھا تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ وہ پوچھنے لگی تو زرمان آسودہ سا مسکراتے سر جھٹکنے لگا، یہ دیکھ کر کہ ان 5 سالوں میں بھی تم نہیں بدلی، تم وہی کمزور سی لڑکی ہو جو لوگوں کے رویوں سے ڈر جاتی ہے، ان کی باتیں برداشت کر جاتی تھی، زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
तुम आज भी अजमेर सिकंदर की फ़िक्र करती हो, तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, है ना? ज़रमान ने उसकी आंखों में देखते कहा, जबकि लफ्ज़ मोहब्बत उसने कैसे अपनी ज़ुबान से निकाला ये वही जानता था। नूर ने साकित नज़रों से उसे देखा, लेकिन फिर होश में आते उसके तासुरात सख्त हुए। हम उनसे मोहब्बत नहीं करते मान, आपकी नज़रें इस बार धोखा खा गई हैं। नूर ने नज़रें फिरते संजीदगी से कहा तो ज़रमान उसे कई लम्हे देखेगा। क्या वाकई वो आज इस लड़की के मामले में गलत था, या फिर वो आसानी से ज़रमान खान से झूठ बोल गई थी? ज़रमान ने खामोशी से उसे देखा था। नहीं, इस लड़की के मामले में वो कभी गलत नहीं हो सकता था। तुम्हारी आंखें फिर मेरे सामने दूसरी दास्तान तुम्हारी आंखें फिर मेरे सामने दूसरी दास्तान क्यों सुना रही हैं? ज़रमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो नूर ने उसे हैरत से देखा। वो उस शख्स से प्यार नहीं करती थी, कर ही नहीं सकती थी। क्या वो उस शख्स से इतना प्यार करती जिसने उसे पूरी दुनिया के सामने उसकी मोहब्बत को उसे ठुकरा दिया था, जिसने पूरी दुनिया के सामने उसकी मोहब्बत को ठोकर मारी थी? उस मगरूर अना के मारे शख्स से मोहब्बत करती जो उसे न कल कुछ समझता था और न आज। उसकी ज़ात की इतनी बेकदरी की थी कि उसे अपना आप अब कुछ भी न लगता था। उसकी ज़ात में जो थोड़ा बहुत गरूर उसकी इज्जत का था वो भी उससे छीन लिया गया था। उसके खेल की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। उसने 9 महीने उस पागल शख्स के साथ जहन्नुम से बदतर ज़िंदगी गुजारी, और आज सामने बैठा शख्स उससे कह रहा था कि वो उससे आज भी मोहब्बत करती है। नूर ने आंखों में हैरत समोए ज़रमान को देखा। कैसे कह सकते हैं आप ये कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं? हम उनसे नफ़रत करते हैं। इतनी नफ़रत के किसी मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं, इतनी नफ़रत के किसी माफ़ी की गुंजाइश नहीं, इतनी नफ़रत कि हम मर तो सकते हैं लेकिन अजमेर सिकंदर को दोबारा मोहब्बत की आंख से देख नहीं सकते। नूर ने गम और गुस्से के संग ज़रमान की आंखों में आंखें गाड़े नफ़रत से कहा था कि वो उस लड़की की आंखों के बदलते तासुरात देख हैरान हुआ। तो तुमने उसे धक्का मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला? तुमने उसे कैसे अभी भी खुद तक रसाई दे दी कि वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा रहा है? और तुम क्यों अभी भी इतनी बेबस हो कि तुम ना खुद उसे कुछ कहती हो, ना मुझे उस शख्स से हिसाब लेने देती हो? क्या नूर अब भी इतनी बेबस है? अज़रमान ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते कहा कि नूर की आंख से आंसू टूट कर गिरा। वो उसे क्या बताती कि उसने किस कदर अपनी नफ़रत का इजहार किया है उस शख्स से, लेकिन अभी भी नूर को लग रहा था कि उसके अंदर की भड़ास नहीं निकली। उसे अभी भी अपनी नफ़रत के इजहार में कमी लग रही थी, और तकलीफ़ वो कितनी भी मजबूत हो जाती, सामने तो एक मर्द ही था ना। क्या उसके वार से वो बच जाती? और बेबस वो क्यों थी? इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने क्यों अजमीर को ज़रमान से बचाया? वो क्यों ये टकराव नहीं चाहती थी? इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। कहो, क्यों हो इस कदर अब भी बेबस? मुझे तुम्हारी ज़ात में अभी भी बेबसी नज़र क्यों आ रही है नूर? ज़रमान ने माथे पर बल डाले उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेतासुर थीं। वो खुद ज़रमान की आंखों में हैरत से देख रही थी। हम नहीं जानते, बस आप इनसे हमारे लिए लड़ें। हाँ, हम नहीं चाहते कि आप उनसे हमारे लिए लड़ें। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ हो। आपको समझ नहीं आता ये जो आपने किया है। हम जानते हैं आपने जानबूझकर किया है। हमारे वादे में कैद होकर खुद को तकलीफ़ पहुंचाई है आपने। कितनी कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे मान? आप क्यों करते हैं आप हमारी इतनी फ़िक्र? क्यों हमारे लिए पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं आप? बस कर दें, आखिर कब तक हमारा सहारा बनते रहेंगे? आपकी अपनी भी तो ज़िंदगी है, फिर क्यों अपनी माँ की पुकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं? बस कर दें, हम नहीं कर सकते और मज़ीद ये सब बर्दाश्त। वो गुस्से से चटक पड़ी कि दबी दबी आवाज़ में चीखी कि सामने बैठा शख्स सांस रोके उसकी बातें सुनने लगा। उसे साकित सा उतर देखने लगा। हम पर इतना मेहरबान मत हो, बस कर दें। हमारी खोखली ज़िंदगी के पीछे अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी मत दें मान। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि आप अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, उसे आबाद करें, छोड़ दें हमारा पीछा, बस कर दें। वो उसकी आंखों में अपनी नम आंखें गाड़े बोली कि ज़रमान, जिसके दिल को एक अनजानी सी खुशी हुई थी कि ये सब कुछ नूर ने अजमीर के लिए नहीं उसके लिए किया। आगे के अल्फाज सुनते हर खुशी फीकी पड़ गई थी। तो क्या वो उस सहारे से बेजार हो गई थी, या वो उसकी ज़िंदगी में इस कदर आगे आ गया था कि वो चिढ़ने लगी थी उससे, या वो उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा था? इसका मतलब मसला अजमीर सिकंदर नहीं, मसला वो था। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आइंदा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगा सनशाइन। ज़रमान को ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई कांच की चीज़ टूटी थी, जो टूट कर चकनाचूर हुई हो। उसके सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने मुस्कुराना चाहा लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सका। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे बेजार हो जाओ। तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ हुई हो तो ये मैं सोच भी नहीं सकता।
तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं अपना सर कलम करके तुम्हारे सामने रख दूँ, ये तो बहुत छोटी बात है। ज़रमान ने नरमी से कहा। ज़रमान खान की आंखें बस ज़ब्त के चक्कर में झुकी हुई थी। वो उसको देख ही नहीं रहा था और अब शायद देख भी ना सकता था। वो गमो गुस्से में क्या कह गई थी उसे होश नहीं था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अगर हाला नूर अपने ही कहे लफ्ज़ों पर गौर कर लेती तो शायद उसे समझ आता कि सामने बैठा शख्स उससे मोहब्बत नहीं करता, जो उसको पाने के लिए हर हद पार कर जाएगा। सामने बैठा शख्स उससे इश्क करता है, वो खामोशी से उसकी खुशी के लिए कुर्बान हो जाएगा। उसके इश्क में वो अपना आप 5 सालों में खुशी खुशी नज़रअंदाज कर गया था। पूरी ज़िंदगी क्या चीज़ थी। उसने अपने इश्क में उसे पाने की चाहत की ही नहीं थी, बस उसके साथ की चाहत की थी। फिर वो साथ कैसा भी हो, लेकिन आज वो लड़की उसके साथ उसके सहारे से बेजार होने लगी थी शायद, और ये भी उसकी गलती नहीं थी। इश्क तो वो करता था उससे, हाला नूर ने तो कभी उससे किया ही नहीं था या कहा भी नहीं था उसके साथ रहें, उसको सपोर्ट करें, उससे इश्क करे। वो ज़रमान ज़रमान वहाँ से उठकर जाने लगा तो नूर को अपने कहे पर फिर अफसोस हुआ। वो क्यों हर बार उस शख्स की फ़िक्र में उसे हर्ट कर जाती थी। नहीं मान, मेरा वो मतलब नहीं था। वो फ़ौरन से उठते उसके पीछे ही पुकारी तो वो रुका और पलट कर फीका सा मुस्कुराया। नहीं सनशाइन, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुम ठीक कह रही हो। सपोर्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में इस कदर शामिल हो जाया जाए कि सामने बैठा शख्स उसकी ज़ात से चिढ़ खाने लगे। मुझे माफ़ कर दो, ज़रमान ने बमुश्किल मुस्कुराते कहा और वहाँ से जा चुका था, जबकि नूर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। हमने ये तो नहीं कहा कि हम उनसे बेजार हैं, हम बहुत गलत बोल गए। या अल्लाह, हम इनका दिल क्यों हर बार दुखा देते हैं। नूर ने सर झुकाते नम आवाज़ में कहा, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था अपने कमरे में, बंद हो चुका था अपने कमरे में। लेकिन जबकि वो लाउंज में अकेली खड़ी रह गई थी। रात का आधा पहर गुजर गया। सब अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन ज़ावियार सिकंदर कमरे में अंधेरा किए चेयर पर बैठा था, सर झुकाए, आंखें ज़मीन पर गाड़े। नज़रों के सामने वो वक्त घूम रहा था जब उसने हानम को बेहाल उस टूटी फूटी इमारत में देखा था, बेहोश वजूद जो धीमा धीमा सांस ले रहा था। यारम के हिसार में पड़ा वो वजूद देख ज़ावियार का दिल उसे डूबता महसूस हुआ। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। ये बारिश में भीगने से ज़्यादा वीकनेस से बेहोश हुई हैं। लगता है 24 घंटों से इन्होंने कुछ खाया नहीं। इनकी शुगर का फील हुआ है। क्या ये शुगर की पेशेंट है? आप इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। ऐसे भूखा रहना इनके लिए ठीक नहीं। इनकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो चल रही है ठंड से और ना खाने की वजह से। ज़ावियार ने अपनी आंखें सख्ती से मींची थी। उसकी हर हालत का जिम्मेदार वही था। उसी की वजह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे याद था हानम ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ज़ावियार ने आगे से इतने कड़वे अल्फाज कहे कि वो खामोश हो गई। इतने दिनों से उसकी आंखों की चमक ज़ावियार की आंखों से मुख्फी तो ना रही थी, लेकिन फिर भी वो उसका दिल तोड़ गया अपने आज के रवैये से। ज़ावियार के दिल ने मलामत की थी उसे। यारम भाई, मैं फंस गई थी। मैं वहाँ वहाँ उस खौफनाक जगह पर फंस गई। मुझे डर लग रहा था, बहुत अंधेरा था, मेरा दम घुट रहा था भाई, मुझे लगा मैं मर गई। हानम के अल्फाज याद करते ज़ावियार ने आंखें खोली। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। कितने घंटे गुजर गए, लेकिन उसकी आंखों से नींद ओझल थी। आंखों के सामने उसका बेहोश वजूद घूम रहा था। क्या वो उसे माफ़ करेगी अब? शायद वो अब उसकी तरफ देखेगी भी ना। वो नहीं जानता था वो ये सब क्यों सोच रहा था, लेकिन ज़ावियार सिकंदर के दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी अब। ज़ावियार ने सर पीछे टिकाते आंखें बंद करते अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। हाँ नमा फंदी, वो धीमी आवाज़ में पुकारा कि दिल ने एक बीट मिस की थी उसके नाम पर, कि ज़ावियार सिकंदर के चेहरे पर भूली भटकी सी मुस्कान आई और उसी के साथ नींद उसे अपनी आगोश में ले गई। सुबह का सूरज निकलते ही उसे लगा कि कोई उसका दम घूंट रहा। उसे सांस नहीं आ रही थी, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। वो डूब रही थी, लेकिन कोई नहीं था। जबकि सामने उसे खड़ा धुंधला सा अक्स नज़र आया था। उसने गौर करने की कोशिश की थी और फिर वो आंखें फाड़े उस शख्स को देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी। हाँ, वो ज़ावियार सिकंदर था। वो डूब रही थी और वो खामोशी से खड़ा देख रहा था। वो चीख रही थी, पुकार रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे खामोशी से खड़ा देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। हानम नींद में बुरी तरह से बौखलाती चीखी कि अरीशा जो उसके बराबर में लेटी थी, उसकी हड़बड़ाहट से आंखें खुलती उसे देखने
देखने लगी। हनम, हनम तुम ठीक हो हनम, आंखें खोलो। अरीशा उसका गाल थपथपाते हुए बोली तो वो अचानक आंखें खोलती अनजान नज़रों से अरीशा को देखने लगी। फिर पलट कर इधर उधर देखती गहरी गहरी सांसें भरने लगी। गहरा घूंट भरते उसने अरीशा को देखा तो अरीशा ने उसे गले लगा। तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसे हादसात होते रहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। देखो तुम्हारे साथ मैं भी तो थी ना वहाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरीशा ने उसे समझाते हुए कहा तो वो खामोशी से सरस बात में हिला गए। वो दोनों उठती फ्रेश होती बाहर आए। अरीशा को बस निकलना था, उसकी शूट की टाइमिंग्स 10 बजे की थी, वो 8 तो यहीं बज गए थे। अब वो बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं था, लेकिन किचन साइड से आवाज़ें आ रही थी। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो यारम अंडा फ्राई कर रहा था, जबकि अलमीर सब्जियां काट रहा था। अरीशा और हानम हैरत से उन दोनों को देख रही थी। सामने खड़े इतने हैंडसम लड़के किचन में खड़े नाश्ता बना रहे थे, वो गश खाने को थी। जब अलमीर की नज़र उन दोनों पर उठी, अरे हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोगों का नाश्ता रेडी है, बस आएँ बैठें और डाइनिंग टेबल पर बस आप आएँ और बैठें डाइनिंग टेबल पर, अलमीर ने मुस्कुराकर कहा तो हानम खिलखिलाती उसे देखती डाइनिंग टेबल पर आ बैठी और मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगी, जबकि अरीशा अभी भी यारम को देख रही थी, जो नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में सुबह सुबह निखरा निखरा बहुत हैंडसम लग रहा था। यारम ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो धुले मुंह के साथ इस तरह की ड्रेसिंग में बुरी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वो ऐसा लिबास नहीं पहनती थी। यारम ने सोचते उसकी आंखों में देखा और सवालिया तौर पर आईब्राउ उचकाई तो वो फिर भी मुस्कुराकर उसे देखती रही। आप में तो काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, और क्या क्या कर लेते हैं आप। वो बराह रास्त यारम के बराबर में खड़े होती, झुककर हाथों में चेहरा टिकाती, मुस्कुराकर सबके सामने यारम से फ्लर्ट करने लगी तो वो दाएं तरफ चेहरा मोड़ता संजीदगी से उसे घूरने लगा, जबकि उसके अंदाज पर अलमीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी और हानम तो हैरत से उसे और यारम को देख रही थी। मिसराना, मुझे लगता है आपको लेट हो गया होगा, आप नाश्ता करें और अपने घर को रवाना हो। यारम ने आंखें फेरते ऑमलेट प्लेट में निकालते कहा तो वो फिर भी ढिठाई से मुस्कुराई। नहीं, आपके लिए वक्त ही वक्त है मेरे पास, आप बेफिक्र रहें, अरीशा मुस्कुराकर बोली तो यारम उसे इग्नोर करता प्लेट्स को लेता डाइनिंग टेबल पर सजा गया तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। यारम फ्रंट सीट पर बैठा था तो वो उसके बराबर वाली चेयर पर खुशी खुशी बैठ गई, जैसे कोई सरहद फतह की हो, जबकि यारम के दूसरी तरफ हानम हैरानगी से बैठी, कभी यारम को देखती तो कभी अरीशा को और उसके अंदाज को। यारम हानम के सामने प्लेट रखता, उसमें उसके लिए ऑमलेट निकालते, एक ग्लास में जग से जूस निकालते उसके सामने रख गया, जबकि अरीशा मोहब्बत भरी नज़रों से उसका हर अमल देख रही थी। उसकी जनूनी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती थी कि यारम किसी दूसरी लड़की को नज़र उठा कर भी देखे, लेकिन हानम से उसका बर्ताव और उसकी मोहब्बत देख अरीशा निसार होती जा रही थी। सामने बैठा शख्स मोहब्बत की मिट्टी में गूंदा गया था। जब वो हानम, जो उसकी बहन नहीं थी लेकिन फिर भी वो उसकी इतनी केयर कर रहा था, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली लड़की से किस कदर मोहब्बत करता, अरीशा सोचकर मुस्कुरा रही थी। जब यारम ने हानम की नज़रों के इर्तकाज़ में अरीशा को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी, यारम नफ़ी में सर हिला गया और अरीशा को घुरा। मिसराना, यारम ने वार्निंग देते लहजे में पुकारा तो वो हड़बड़ाती मुस्कुराई और जूस का ग्लास मुंह से लगाया, जबकि हानम निवाला मुंह में डालती मायनी खेज नज़रों से यारम को देखने लगी। यारम ने हानम को भी घूरा तो वो मुंह पर हाथ रखती अपनी मुस्कुराहट रोक गई। वैसे और आपको क्या पसंद है, अरीशा ने यारम से पूछा तो वो हाथ रोकता उसे देखने लगा। अरे मैं तो सबको ही पसंद हूँ, मेरे अलावा आपको क्या क्या पसंद है, अरीशा ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते मुस्कुराहट रोकते कहा तो यारम ने जब्त से आंखें भींची। भाई को शायरी बहुत पसंद है, हानम ने मुंह में निवाला रखते मुस्कुराहट रोकते कहा तो अरीशा ने हैरानी से उसे देखा। सीरियसली, यारम सुल्तान को शायरी पसंद है, पर्सनालिटी से लगते नहीं हैं आप वैसे, अरीशा ने हैरत से कहा तो यारम ने देखा निखरी निखरी रंगत में वो कोई गुड़िया लग रही थी। नाश्ता खामोशी से करना चाहिए, उम्मीद है अब आप अपना मुंह बंद करके खाएंगी, यारम ने उसके ज़्यादा बोलने पर उसे टोकते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ ही देर में ज़ावियार भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया, अरीशा के बराबर में। उसके सामने हानम और अलमीर बैठे थे। उसके आते ही हानम की मुस्कुराहट सिमट गई थी, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, चेहरा स्पाट हो गया था। आंखें फेरते वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई।